اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم۔ میرے محترم بھائیوں، الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے 3 ہفتوں سے شیخ ممتاز احمد سلفی حافظ اللہ نے اسلام میں وراثت کے نظام پر خطاب فرماتے ہیں۔ الحمدللہ اسی موضوع کا چوتھا حصہ ہے آج۔ الحمدللہ شیخ محترم بھی جانے پہچانے ہیں، اسی لیے بغیر تاخیر کے میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا موضوع اسلام میں وراثت کے نظام پر خطاب فرمائے۔ فليتفضل شیخ ممتاز احمد سلفی حافظ اللہ مشکورا و معجورا و جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ہم تمام کو اسلام جیسا پاکیزہ نظام عطا کیا۔ درود و سلام نازل ہوں ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جن کا لایا ہوا پاکیزہ دین اور پاکیزہ شریعت ہمیں ملے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ شریعت کا پابند بن کر ہم تمام کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم اور معزز سامعین، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ عنوان ہے اسلام میں وراثت کا نظام۔ اس سے پہلے مختلف دروس اسی عنوان سے متعلق آپ حضرات کے مابین پیش کیے جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں اسی سلسلے کی کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اسلام نے انسانی زندگی سے متعلق مختلف شعبہ جات سے متعلق واضح رہنمائی بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح سے وراثت کے سلسلے میں مذہب اسلام نے ایک واضح طور پہ قانون مسلمانوں کو دیا ہے اور اس کے اوپر چلنے کا ہم تمام سے مطالبہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نساء آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وراثت کے نظام کو بیان کرنے کے لیے 2 پہلوؤں سے اس کی حقیقت کو واضح کیا۔ پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ قرآن مجید آپ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے دوسرے مسائل سے متعلق اتنی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر آیات نازل نہیں فرمائیں جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر وراثت کو تفصیلی طور پہ بیان کیا۔ یہ اس نظام کی اہمیت کے لیے ایک واضح طور پہ دلیل ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا جو قانون دیا، اس قانون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیداً دیا ہے۔ تاکیداً کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کرنے پہ زور ڈالا۔
آپ دیکھیے سورہ نساء جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کی تفصیل کو بیان کیا، اس کے شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس طرح سے مردوں کے لیے والدین کی وفات کے بعد، قریبی رشتہ داروں کی وفات کے بعد حصہ ہوا کرتا ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی اسلام نے حصہ مقرر کیا ہے، چاہے مرنے والا کم مال چھوڑ کر کے گیا ہو یا مرنے والا زیادہ مال چھوڑ کر کے گیا ہو۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا کہ نصیبا مفروضہ، نصیب یہ نصب سے بنا ہے، نصب کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ستون گاڑ دیا جائے، مضبوط ستون نصب کر دیا جائے، گاڑ دیا جائے تو اس کو ہلانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے وراثت کے نظام کے لیے نصیبہ مفروضہ کا لفظ استعمال کیا کہ جس طرح سے ایک ستون گاڑ دیا جاتا ہے، ہلانا اس کا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح سے وراثت کا جو نظام اللہ نے بیان کیا ہے وہ مضبوط پول کی طرح سے ہے، سختی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس کے اندر خرد برد کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ اس کے بعد آگے آپ بڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 نمبر کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد سے متعلق تمہیں وصیت کرتا ہے۔ یہ وصیت کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس قانون کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بعد اسی آیت کے اندر آپ آگے بڑھیں، اللہ رب العالمین نے کہا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد 12 نمبر کی آیت میں جائیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وصیۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے یہ وصیت ہے، یعنی وراثت کی جو تفاصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کہیں پہ نصیبہ مفروضہ کہا، کہیں یوصیکم اللہ فی یوصیکم اللہ کا لفظ استعمال کیا، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فریضۃ من اللہ استعمال کیا، کہیں پہ وصیۃ من اللہ استعمال کیا۔ یہ الفاظ تاکید پہ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تاکیدی طور پہ حکم دیتا ہے کہ اس قانون کو فالو کیا جائے، اس قانون کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور آگے آپ بڑھیں گے، ابھی ہمارے بھائی نے تلاوت کی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اندر داخل کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں وَيَتَعَدَّ حُدُودًا، نظام میراث میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کر رکھے ہیں ان کو جو لوگ پامال کرتے ہیں، کمی اور زیادتی کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یدخلہ نارا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، خالدن فیہا، یہ لوگ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا نظام تفصیلی طور پہ بھی بتایا اور تاکیدی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وراثت کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اتنی تمہید آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جب کسی بھی آدمی کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد مذہب اسلام کے اندر جو قانون میراث ہے اس کا ایک ضابطہ ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے مال سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، دوسرے نمبر پہ اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہے تو اس قرض کی ادائیگی اس کے مال سے کی جائے گی، تیسرے نمبر پہ اگر کسی غیر وارث کو اس نے 1/3 یا اس کے اندر مال میں وصیت کی ہے تو وصیت نافذ کی جائے گی، اور چوتھے نمبر پہ مال کو وارثین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ وارثین کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ وارثین کی جب ہم فہرست دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اصحاب الفروض کا نام آتا ہے۔ اصحاب الفروض وہ افراد ہیں جن کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
मुकर्रर कर दिया है, या हदीस के अंदर उनके हिस्से की वजाहत आ गई। सबसे पहले इनको माल दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे असहाबुत तासीब हैं। असहाबुत तासीब का मतलब होता है कि इन वो अफराद जिनका ताल्लुक असहाबुल फराइज में से है, असहाबुल फुरूज में से है, उनके बाद जो मैयत के करीबी रिश्तेदार होते हैं उन्हें बचा हुआ माल दे दिया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे ज़वील अरहाम का तज़किरा आता है। हम इंशाअल्लाह पहले और दूसरे के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मैंने ये बताया था कि जो लोग असहाबुल फुरूज के अंदर आते हैं, जिनका हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर कर दिया है, उनकी तादाद कुल 12 है। 12 में से 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। वो 4 मर्द कौन हैं? पहला है शौहर, दूसरा है बाप, तीसरा है दादा, और चौथा है माँ शरीक भाई, जिसे हम अखियाफी भाई कहते हैं। और उसके अलावा 8 औरतें हैं। 8 औरतों में नंबर 1 बीवी है, नंबर 2 माँ है, नंबर 3 दादी है, नंबर 4 हकीकी बहन। हकीकी बहन का मतलब ये होता है कि माँ बाप दोनों एक हों। नंबर 5 बाप शरीक बहन, जिसको अल्लाती बहन कहा जाता है। नंबर 6 माँ शरीक बहन, जिसे अखियाफी बहन कहा जाता है। नंबर 7 बेटी है। नंबर 8 पोती है, बेटे की बेटी। अब आप देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने जो असहाबुल फुरूज का तज़किरा किया है, उसके अंदर 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। औरतों की अक्सरियत आप देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने असहाबुल फुरूज के अंदर उन्हें डाल दिया है। यह ऐसा क्यों है? अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों की कसरत असहाबुल फुरूज के अंदर क्यों रखी है? उसके बारे में अहले इल्म ने लिखा है कि मैयत का जो माल तकसीम किया जाता है, असहाबुल फुरूज को दिया जाएगा, असहाबुत तासीब को दिया जाएगा। असहाबुल फुरूज वो होते हैं जिनका हिस्सा शरीयत के अंदर मुकर्रर है, और असहाबुत तासीब वो होते हैं जिनका हिस्सा शरीयत के अंदर मुकर्रर नहीं है। असहाबुल फुरूज को लेने के बाद जो माल बाकी बचता है वह असहाबुत तासीब ले लेते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन 12 किस्म के अफराद को असहाबुल फुरूज के अंदर शामिल किया है। इसके सिलसिले में अहले इल्म ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मीरास का जो कानून नाजिल किया था, वो दर हकीकत औरतों को उनका हक दिलाने के लिए नाजिल किया। इससे पहले दर्स में ये बात जिक्र की जा चुकी है। कहते जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया कि हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेवा खातून अपनी 2 बेटियों को लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और कहा, अल्लाह के नबी, मेरे शौहर ग़ज़वे उहद के अंदर शहीद हो गए, और मेरे देवर यानी मेरे शौहर के भाई ने मेरे शौहर के पूरे तरके को ले लिया है। मेरे पास ये 2 बेटियां हैं, फिर मेरा मामला क्या होगा? इनका शादी ब्याह कैसे होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजार करने का हुक्म दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने कानून मीरास नाजिल किया, मीरास का उसूल नाजिल किया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि 1/8 हज़रत साद इब्न रबी की बीवी को मिलेगा, 2 सुलुस यानी 3 हिस्से में से 2 हिस्सा माल उनकी दोनों बेटियों को मिलेगा, और जो बाकी माल बचता है वह असबा होने की हैसियत से हजरत साद के भाई को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम ले रहे हो। यहाँ पे आप गौर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मीरास का जो कानून नाजिल किया है वह औरत को इंसाफ दिलाने के लिए, और चूंकि औरत समाज और माशरे का कमजोर तबका होता है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनका तज़किरा असहाबुल फुरूज के अंदर किया। क्योंकि जब माल की तकसीम का मरहला आता है तो सबसे पहले माल दिया जाएगा असहाबुल फुरूज को, जिनका हिस्सा मुकर्रर है। इन 12 अफराद में से जो पाने वाले हैं उनको दिया जाएगा। उसके बाद जो माल बचेगा वह असहाबुत तासीब का होगा, और सबसे पहले
असहाबुल फुरूज को दिया जाएगा, बाद में जो माल बचेगा वह असहाबुल तासीब को देंगे। तो आप देखें अल्लाह तबारक व तआला ने मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए या कमजोरों को उनका हक दिलाने के लिए उनके हुकूक का तज़किरा पहले किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है कि अलहिकुल फराइज़ बिअहलिहा, कि जो असहाबुल फुरूज हैं सबसे पहले हिस्सा उनको दो, और जब जो बाकी बचेगा वो मैयत के जो मुज़क्कर असबा होंगे वो लोग उसको हासिल कर लेंगे। तो बहरहाल ये बुनियादी बात थी कि मज़हब इस्लाम ने खास तौर से जो कमजोर तबका होता है, जो लाचार तबका होता है, उसके हुकूक की रियायत मज़हब इस्लाम ने की है। और मीरास के निज़ाम के अंदर भी यही चीज़ हमें और आपको देखने को मिलती है कि अल्लाह ताला ने जहाँ पे मीरास के अंदर असहाबुल फुरूज के अंदर 4 आदमियों का तज़किरा किया, वहीं पे 8 औरतों का तज़किरा किया, बल्कि औरतों की कसरत आपको असहाबुल फुरूज के अंदर दिखेगी। उसके बाद मैंने पिछले दर्स में असहाबुल फुरूज में से किसको कितना मिलेगा, कुछ लोगों का मैंने आपके सामने तज़किरा किया था। मिसाल के तौर पे मैंने शौहर का तज़किरा किया था। अभी जो खिताब से पहले जिन आयात की तिलावत के ज़रिए से इस मुबारक महफिल का आगाज़ हुआ है, उनके अंदर उसके अंदर जो आयतें तिलावत की गई हैं, उन आयात के अंदर शौहर और बीवी के हिस्से का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तफसील के साथ बयान कर दिया है। शौहर की 2 हालत होती है, मरने वाली बीवी के पास अगर औलाद नहीं है तो शौहर अपनी बीवी के मजमूई तरके से निस्फ पाएगा, और अगर औलाद है तो ऐसी सूरत में रुबो पाएगा। ऐसे ही शौहर अगर माल छोड़ता है, शौहर के पास औलाद नहीं है तो बीवी 1/4 पाएगी, और अगर औलाद है तो ऐसी सूरत में 1/8 पाएगी। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन की हालत, माँ और बाप की हालत को बयान किया है, और इसी तरह से बेटी की हालत या एक से ज़ायद बेटियां हों तो उन हालात को अल्लाह तबारक व तआला ने 11 और 12 आयात के अंदर, आप देखिए सूरह निसा के अंदर अक्सर लोगों के हिस्से को अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं आयात के अंदर बयान कर दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि मीरास के मामले में कुछ जुज़ई मसाइल होते हैं जिन मसाइल का जानना भी हम तमाम के लिए ज़रूरी होता है। इस्लाम चूंकि तमाम लोगों के हुकूक की रियायत करता है, इसलिए निज़ाम मीरास के अंदर आप देखें कि मज़हब इस्लाम ने किस तरह से लोगों के हुकूक की रियायत की है। मिसाल के तौर पे एक मसला है कि अगर कोई आदमी गुम हो जाए, कोई आदमी गुम हो जाए तो ऐसी सूरत में उसके तरके का मामला क्या होगा। ये भी निज़ाम मीरास के अंदर एक अहम तरीन मसला है कि अगर कोई आदमी जो प्रॉपर्टी रखता है, उसके पास माल है, लेकिन वो कहीं गुम गया। अब गुम जाने के बाद उसके तरके का हम क्या करेंगे, उसके माल का हम क्या करेंगे। इससे पहले हमने ये देखा था कि अगर कोई आदमी इंतकाल कर जाता है तो इंतकाल उसका जब साबित हो गया तो जो वारिसिन होते हैं, तजीज़ व तकफीन के बाद, कर्ज के बाद और वसीयत के बाद उसके माल को वारिसिन में तकसीम करते हैं। लेकिन अगर उसकी मौत हमने नहीं देखी बल्कि वो मफकूद हो गया, गुम हो गया, तो ऐसी सूरत में उसके तरके का मामला मज़हब इस्लाम के क़वानीन की रोशनी में कैसे हल किया जाएगा। इस सिलसिले में आप देखेंगे तो अहले इल्म ने किताब व सुन्नत के दलाइल की रोशनी में या किताब व सुन्नत के फ़हम की रोशनी में जो बातें बयान की हैं, उनमें से एक बुनियादी बात यह है कि अगर कोई आदमी जो माल रखने वाला हो, वो आदमी गुम गया, तो उसका जो माल है, जब तक उसके मौत की यकीनी खबर नहीं आ जाएगी, तब तक हम उसके वारिसिन में उसके माल को तकसीम नहीं कर सकते हैं। या इसी तरह से काजी जब तक उसकी मौत को डिक्लेयर नहीं कर देगा, तब तक हम उसके माल को तकसीम नहीं कर सकते हैं। ये मसला आमतौर पर इसलिए बयान करना पड़ता है कि अगर कोई आदमी साल 6 महीने के लिए लापता हो जाता है तो लोग जल्दबाजी करते हैं कि उसके माल को जिसके हाथ जो आता है वो उसको ले लेते हैं। लेकिन इस्लाम के अंदर एक पाकीज़ा और शफ़ाफ़ निज़ाम है, और इस्लामी उसूल ये है कि अगर कोई आदमी गुम हो जाता है तो जब तक उसकी मौत की यकीनी खबर ना आ जाए या काजी उसकी मौत को डिक्लेयर ना कर दे,
तब तक हम उसके माल को तकसीम नहीं कर सकते हैं। और इस सिलसिले में अहले इल्म ने लिखा है कि अगर उसकी मौत की यकीनी खबर नहीं आती है तो ऐसी सूरत में बाज आसार से जो साबित है, मुअत्ता इमाम मालिक वगैरह के अंदर रिवायात मौजूद हैं, 4 साल तक ऐसे शख्स का इंतजार किया जाएगा और उसके बाद उसकी मौत का काजी हुक्म सादिर फरमाएगा, उसकी मौत का फैसला करेगा और उसके बाद उसकी तरक्की को लोगों के दरमियान तकसीम किया जाएगा। दूसरी सूरत ये होती है कि गुम होने वाला ऐसा शख्स है जो वारिस है। मिसाल के तौर पे बाप की जायदाद के बेटे वारिस होते हैं। अब बाप अगर गुम गया तो जब तक उसकी मौत की यकीनी खबर ना आ जाए या काजी उसकी मौत का फैसला ना कर दे, तब तक हम उसके तरके को लोगों के दरमियान तकसीम नहीं कर सकते हैं। अगर बाप मौजूद है, कोई बेटा गुम गया, तो ऐसी सूरत में उसकी हालात को हम देखेंगे। पहली हालत ये है कि उसकी मौत के खबर आने का हम इंतजार करेंगे। जब उसकी मौत की खबर आएगी तो ऐसी सूरत में हम देखेंगे कि अपने बाप की मौत से पहले अगर मरा है तो ऐसी सूरत में उसका जो हिस्सा है वो उसके बाप की जो दूसरी औलाद है, दूसरे जो वारिसिन, उनके दरमियान तकसीम कर दिया जाएगा। दूसरी सूरत ये होती है कि जिस वक्त वारिस के वफात की इत्तला लोगों को मिली है, जब देखा गया, पता किया गया, तो बाप जो मुवर्रिस था, जिसका तरीका बेटों में तकसीम किया गया और वारिस गुम गया था, उसकी मौत बाप के मरने के बाद हुई है। अगर पहले हुई है तो ऐसी सूरत में उसको तरके में हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि बाप की जायदाद समझ करके दूसरे वारिसिन में तकसीम कर दिया जाएगा। और अगर उसकी मौत बाप की मौत के बाद हुई है तो ऐसी सूरत में उसका हिस्सा मुख्तस किया जाएगा, खास किया जाएगा, फिर उसके मरने के बाद उसके जो वारिसिन होते हैं उनके दरमियान तकसीम किया जाएगा। तो ये टोटल पहली सूरत मुवर्रिस की बनती है, यानी कोई आदमी जो साहिब माल है वो गायब हो गया, तो ऐसी सूरत में उसकी मौत की हम यकीनी सूरत हाल का इंतजार करेंगे। अगर यकीनी खबर आ जाती है तो ठीक है, या काजी अगर फैसला कर देता है तो ठीक है, उसके तरीके को लोगों में तकसीम कर दिया जाएगा। और अगर कोई वारिस है, मान लीजिए बेटा गुम हो गया है, तो ऐसी सूरत में जब उसकी मौत की हमें इत्तला मिलेगी तो हमें ये देखना होगा कि बाप की मौत से पहले मरा है या बाप की मौत के बाद मरा है। अगर पहले मरा है तो ऐसी सूरत में बाप की जायदाद में उसका हिस्सा नहीं होगा। अगर उसका हिस्सा कुछ निकाल करके रखे है तो पुराने निजाम के तहत दूसरे वारिसिन में तकसीम कर दिया जाएगा। और अगर बाप की मौत के बाद उसका इंतकाल हुआ है तो ऐसी सूरत में इसका जो हिस्सा होगा इसके वारिसिन के दरमियान तकसीम किया जाएगा। ये एक मसला हुआ। दूसरा मसला आप देखेंगे मीरास के बाब में, अगर कोई आदमी इंतकाल करता है तो जिस तरह से उसके वारिसिन उसके तरके के वारिस होते हैं, उसी तरह से अगर उसकी बीवी के पेट में बच्चा है, अमल से है, तो मजहब इस्लाम ने उसका भी हिस्सा मुकर्रर कर रखा है और उसको भी हिस्सा देने की मजहब इस्लाम तालीम देता है। लेकिन उसके लिए कुछ उसूल हैं, उसके लिए कुछ शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि जब आदमी का इंतकाल हुआ, इंतकाल होते वक्त उसकी बीवी के पेट में हमल करार पाना साबित हो। ऐसा ना हो कि उसके बाद हमल ठहरा है। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसकी बीवी का हामिला होना ये वाज़ेह हो गया हो, जिससे ये पता चलता हो कि यह हमल उसी के नुत्फे का है। तो पहली शर्त यह है, अगर कोई आदमी इंतकाल करता है और बीवी के पेट में हमल है तो शरीयत उसको भी हिस्सा देने की बात करती है। उसकी पहली शर्त ये होगी कि मैयत के इंतकाल के वक्त उसकी बीवी का हमल से होना वाज़ेह हो चुका हो। दूसरी शर्त यह है कि बच्चा जब माँ के पेट से पैदा हुआ तो पैदा होते वक्त वो जिंदा हो। अगर मुर्दा पैदा हुआ तो ऐसी सूरत में उसका एतबार नहीं होगा। पैदा होते वक्त वो जिंदा रहा हो, चाहे 5 ही मिनट जिंदा रहा हो, तो जिंदा अगर पैदा हुआ तो ऐसी सूरत में शरीयत उसका हिस्सा, अगर वो लड़का है तो लड़के का हिस्सा पाएगा, लड़की है तो लड़की का हिस्सा पाएगी। या इसी तरह से अभी आगे बहस आ रही है, अगर वो मुखन्नस है
मुखन्नस जिस को हम हिजड़ा कहते हैं, तो उसके भी शरीयत के अंदर अहकामात हैं। तो दूसरी चीज ये है कि बवक्ते विलादत बच्चा जिंदा पैदा हुआ हो तो शरीयत उसे हिस्सा देने की बात करती है, और अगर जिंदा पैदा नहीं हुआ है तो ऐसी सूरत में उसे हिस्सा नहीं दिया जाएगा। दलील क्या है? सुनन इब्न माजा की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यरिसु सबिय्यु हत्ता यस्तहिल्ल सारिखन, कि बच्चा अपने मुअर्रिस की जायदाद का वारिस नहीं होगा जब तक कि वो चीखा ना हो। यानी पैदा होते वक्त बच्चा अगर चीख लगाने का मतलब ये है कि कन्फर्म हो कि जिंदा पैदा हुआ है, तो ऐसी सूरत में उस बच्चे को उस तरके में से हिस्सा दिया जाएगा। ये मजहब इस्लाम का एक वाज़ेह तरीन कानून है कि अगर कोई आदमी इंतकाल करता है और उसके नुत्फे से उसकी बीवी के पेट में अगर बच्चा है तो उस बच्चे का भी हिस्सा महफूज रखा जाएगा। बेहतर तो ये है कि बच्चे की विलादत के बाद वारिसीन अपने माल को तकसीम करें, ताकि ये कन्फर्म हो जाए कि बच्चा लड़का है या लड़की है। और अगर कुछ लोग जल्दी करते हैं तो ऐसी सूरत में लड़का या लड़की होने की सूरत में ज्यादा हिस्सा जिसको मिलता है, यानी लड़के को, वो हिस्सा उसको महफूज रखा जाएगा। पैदा होने के बाद अगर वो लड़का पैदा हुआ, इस शर्त के साथ जिंदा पैदा हुआ, तो वो हिस्सा उसे दिया जाएगा। और अगर लड़की पैदा हुई तो लड़की का हिस्सा दे करके बकिया जो माल है वो दूसरे वारिसीन के दरमियान तकसीम कर दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा मसला है इस सिलसिले में मीरासुल खुनसा, जो मुखन्नस होते हैं। अभी मैंने मुखन्नस का तज़किरा किया, वो लोग जो पैदाइशी तौर पे ना तो मर्द में होते हैं ना औरत में होते हैं, तो ऐसे लोगों के विरासत का शरीयत ने जो निज़ाम कायम किया है वो ये है कि जो मुखन्नस होते हैं उन मुखन्नस लोगों की कई शक्लें होती हैं। पहली शक्ल ये होती है कि उसका जिन्स मालूम हो जाता है कि ये मर्द है या औरत है। मिसाल के तौर पे कोई आदमी या कोई मुखन्नस पैदा हुआ, पैदा होने के बाद वो कंफर्म नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद लगभग बुलूगत के वक्त वो मर्दों के तरफ मैलान रखता है या औरतों की इलामात उसके अंदर ज्यादा पाई जाती हैं, ये कंफर्म हो जाता है। तो अगर कोई मुखन्नस है और उसका जिन्स वाज़े हो जाता है कि वो मुज़क्कर की तरफ है या मुअन्नस की तरफ, मर्द की तरफ है या औरत की तरफ, अगर वाज़े हो जाता है तो ऐसी सूरत में अगर मर्द की तरफ है तो मर्दों का हिस्सा दिया जाएगा, औरत की तरफ है तो औरतों का हिस्सा दिया जाएगा। ये मुखन्नस की एक सूरत होती है जब उसका वाज़े हो जाए कि वो मर्दों में से है या औरतों में से है। दूसरी सूरत ये होती है कि उसका वाज़े नहीं हो पाता है, वाज़े नहीं हो पाता है। वाज़े ना होने की एक सूरत ये होती है कि अभी वो बच्चा है और बचपन में ये क्लियर नहीं हो पाता है कि ये मर्दों की जिन्स का है या औरतों की जिन्स का है। तो ऐसी सूरत में ये देखा जाएगा, एक तो सूरत होती है रिजा की कि ये आगे बड़ा होकर के उम्मीद है कि आगे चल करके मर्दों या औरतों में से किसी एक जिन्स से होगा। तो ऐसी सूरत में जब वो होगा, वैसी सूरत में मर्दों में से हुआ तो मर्दों का हिस्सा, औरतों में से हुआ तो औरतों का हिस्सा तकसीम कर दिया जाएगा। दूसरी सूरत ये होती है कि बचपन ही में उसका इंतकाल हो गया, तो ऐसी सूरत में अभी वो तो मुखन्नस है, मुखन्नस होना कन्फर्म है, लेकिन अब वो मर्दों की जिन्स से है या औरतों की जिन्स से है, क्योंकि बचपन में उसका इंतकाल हो गया इसलिए ये मामला क्लियर नहीं है। या इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े भी हो जाते हैं लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि ये मर्दों में से है या औरतों में से हैं। तो ऐसे लोगों के सिलसिले में अहले इल्म का कहना यह है कि दरमियानी हिस्से से इनको विरासत में हिस्सा दिया जाएगा, यानी मर्दों का जो हिस्सा होता है और औरतों का जो हिस्सा होता है उसके बीच बीच का इन्हें हिस्सा दिया जाएगा। या बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि एक मर्तबा मर्द समझ करके पूरी जायदाद को तकसीम करके इनका हिस्सा दिया जाएगा और इसी तरह से औरत समझ करके तकसीम करके इनको हिस्सा दिया जाएगा। तो भी बात वही होती है कि दरमियानी हिस्सा इनको मिलेगा, ना मर्दों इतना मिलेगा ना औरतों इतना कम मिलेगा, बीच का हिस्सा इन्हें मिलेगा। एक सूरत ये होती है विरासत के मामले में कि इज्तिमाई मौत हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि एक साथ जहाज में कई लोग जा रहे थे, एक ही कुंबे के लोग, जहाज
हादसे का शिकार हुआ और ये सारे लोग वफात पा गए। या दूसरी सूरत ये होती है कि ट्रेन में है, बस में है, कार में है, कोई हादसा हुआ और उस हादसे की बुनियाद पे कई लोगों की वफात हो गई। तो ऐसी सूरत में कभी ऐसा होता, बाप भी होता है, बेटा भी होता है, बेटी भी होती है, बीवी भी होती है, और इसी तरह से और दीगर वारिसीन होते हैं, एक ही साथ उनकी वफात हो जाती है। तो इस सिलसिले में शरीयत का निज़ाम क्या है, अहले इल्म ने क्या कहा है, इसके सिलसिले में सबसे पहली सूरत ये होती है कि जितने भी लोग एक साथ वफात पाए हैं, जितने लोग एक साथ इंतकाल किए हैं, ये पता ना चल सके कि पहले कौन मरा बाद में कौन मरा, ये कन्फर्म ही ना हो पाए। यानी एक साथ जो हादसा हुआ, सारे लोग इंतकाल कर गए और उसमें कोई गवाह भी नहीं मौजूद है, ना वहां स्पॉट पे कोई था जो ये बता सके कि पहले इसकी मौत हुई, उसके बाद इसकी मौत हुई, इसके बाद इसकी मौत हुई। पता ही नहीं चल रहा है कि पहले कौन मरे, सब लोग मरे, पहले कौन हुआ बाद में कौन हुआ ये कन्फर्म नहीं चल मालूम हो रहा है। तो ऐसी सूरत में इस्लाम का उसूल ये है कि उनमें से कोई भी एक दूसरे के तरीके का प्रॉपर्टी का वारिस नहीं होगा, क्योंकि कन्फर्म ही नहीं हो रहा है। और शराइत जब मैंने बयान किया था तो वहां पे ये बताया था कि शराइत में से बुनियादी शर्त यह है कि मुअर्रिस की मौत के वक्त वारिस जिंदा हो, वारिस का जिंदा होना लाजिम है। तो यहाँ पे मुअर्रिस भी मरा, वारिस भी मरा, पहले कौन मरा बाद में कौन मरा ये कन्फर्म नहीं है। तो इस बुनियाद पे अहले इल्म का कहना यह है कि इनमें से कोई भी एक दूसरे के तरीके का वारिस नहीं होगा, प्रॉपर्टी का वारिस नहीं होगा। दूसरी सूरत है कि कई लोग इंतकाल किए हैं लेकिन तरतीब मालूम हो रही है कि पहले कौन इंतकाल किया, बाद में कौन इंतकाल किया, बाद में कौन इंतकाल किया। तो ऐसी सूरत में इस्लाम का जो निज़ाम है कि एक आदमी का इंतकाल होता है, उसके इंतकाल के वक्त जो अगर वारिस है और वो जिंदा है तो उसके तरीके का उसे हिस्सा मिलेगा। तो इस तरतीब पे जो आम तरतीब है विरासत को तकसीम करने की, उस तरतीब पे लोगों के दरमियान माल को तकसीम किया जाएगा। तो ये हादसाती जो अमवात होते हैं, कई लोग एक साथ मर जाते हैं, ऐसे मौके पे शरीयत ने, इस्लाम ने ये उसूल दिया है और अहले इल्म ने ये सब मसाइल बयान किए हैं। इसी तरह से आप देखेंगे एक मसला है वलदुल लिआन का। लिआन कहते हैं, आप पढ़ेंगे कुरान मजीद सूरह नूर के अंदर आप देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों की इज्जत और उनकी इस्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े ठोस कानून बयान किए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की सूरह नूर के अंदर इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदाअ फजलिदूहुम 80 जल्दा, कि अगर कोई आदमी किसी पाकदामन औरत के ऊपर तोहमत तराजी करता, तोहमत लगाता है, तो उसे 4 गवाह पेश करना पड़ेगा अपनी बात को साबित करने के लिए। ये दीन का वाहिद मसला है जहां पे 4 गवाह का मुतालबा किया गया है, वरना दीन के किसी भी मसले में 4 गवाहों का मुतालबा नहीं किया गया। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई आदमी किसी पाकदामन औरत के ऊपर तोहमत लगाता है तो उसे 4 गवाह पेश करना पड़ेगा। अगर वो 4 गवाह पेश कर ले गया अपनी बात को साबित करने के लिए, अपने दावे को साबित करने के लिए, तो जो लोग मुजरिम हैं अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो 100 कोड़े लगाए जाएंगे, मर्द को 1 साल के लिए शहर बदर किया जाएगा, और अगर वो शादीशुदा हैं तो ऐसी सूरत में पत्थर से मार मार करके उन्हें रज्म कर दिया जाएगा। ये मुख्तलिफ रिवायात से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से और सहाबे किराम के तामुल से साबित है। और अगर 4 गवाह नहीं पेश कर सका तो ऐसी सूरत में उसे 80 कोड़े खाने पड़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि फजलिदूहुम 80 जल्दा, ये जो तोहमत लगाए अपनी बात के ऊपर, अपने दावे के ऊपर 4 गवाह नहीं पेश कर सके तो इन्हें 80 कोड़े खाने पड़ेंगे। उसके बाद आगे आप पढ़ेंगे अल्लाह ताला ने बयान किया कि अगर कोई आदमी यही तोहमत अपनी बीवी के ऊपर लगाता है, अपनी बीवी के ऊपर ज़िना की तोहमत लगाता है, इल्जाम लगाता है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए भी शरीयत के अंदर हुक्म यही है कि वो 4 गवाह पेश करेगा। 4 गवाह अगर पेश कर ले गया तो उसकी बीवी के ऊपर शरीयत ने जो हद मुकर्रर कर रखी है वो हद कायम की जाएगी। और अगर 4 गवाह नहीं पेश कर सका तो ऐसी सूरत में मियाँ बीवी के दरमियान लिआन करा दिया जाएगा। उसी को कहते हैं लिआन। अगर गैर की बीवी के ऊपर लगाया है, गैर औरत के ऊपर लगाया,
4 गवाह पेश कर ले गया तो ठीक है, सामने वाले को सजा दी जाएगी। 4 गवाह नहीं पेश कर सका तो 80 कोड़े खाने पड़ेंगे। और अगर कोई आदमी अपनी बीवी के ऊपर यही इल्जाम लगाता है तो अपनी बात को साबित करने के लिए उसे 4 गवाह पेश करना पड़ेगा। और अगर 4 गवाह नहीं पेश कर सका तो ऐसी सूरत में मियाँ बीवी के दरमियान लिआन करा दिया जाएगा, यानी जो जिम्मेदारान हैं वो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई पैदा करा देंगे, और उस जुदाई का नाम लिआन है। लिआन इसीलिए कहा जाता है कि कुरान मजीद में आप पढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिआन की सूरत बयान की है कि 4 मरतबा मर्द से कसम लिया जाएगा, उसके बाद 5वीं मरतबा में वो अपनी बात को साबित करने के लिए और सामने वाले को मुल्जिम साबित करने के लिए कहेगा। इसी तरह से औरत से 5 मरतबा ही बात कहलवाई जाएगी। पूरी तफसील अल्लाह ताला ने सूरह नूर की इब्तिदा में बयान की है। तो इसको लिआन कहा जाता है। और ये लिआन की जो जुदाई होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुतलाइनान ला यस्तमिआन अबदा, कि जब लिआन हो जाता है मियाँ बीवी के दरमियान तो ये दोनों कभी भी एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, यानी मौत तक ये दोनों इज़्दवाजी जिंदगी के अंदर कभी भी इकट्ठा नहीं हो सकते। तो अगर कोई बच्चा वलदुल लिआन हो, यानी मर्द ने अपनी बीवी के ऊपर तोहमत लगाया कि वो जानिया है और दोनों में जुदाई पैदा कर दी गई, गवाह नहीं पेश कर सका, जुदाई पैदा कर दी गई, तो अब वो जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे का हुक्म क्या है? या इसी तरह से कहा जाता वलदुल ज़िना, यानी बाजारी औरत है, अपने शौहर के अलावा किसी हराम नुत्फे को उसने परवरिश किया और उसके जरिए से बच्चा पैदा हुआ, तो उस बच्चे का हुक्म क्या है विरासत के बाब में? तो इस सिलसिले में अहले इल्म ने लिखा है कि वो बच्चा अपने बाप की जायदाद का वारिस नहीं होगा, क्योंकि बाप ने इनकार कर दिया है कि वो उसका नत्फा नहीं है, तोहमत लगाया, तो बाप के तरके में वो बच्चा हिस्सेदार नहीं होगा। या अगर कोई बाजारी औरत है, किसी दूसरे के नुत्फे को परवरिश किया उसने, तो चूंकि वह हराम नुत्फा है, इस बुनियाद पे उसका जो बाप है जिसके नाजायज नुत्फे से यह बच्चा पैदा हुआ, तो बाप के तरके में इसे हिस्सा नहीं मिलेगा। अलबत्ता माँ के तरके में इस तरह के बच्चों को हिस्सा मिलता है। और इसी तरह से माँ के जरिए से जो रिश्ते होते हैं, यानी माँ के जरिए से अगर कोई भाई है, माँ शरीक भाई है, माँ शरीक बहन है, या इसी तरह से और जो रिश्ते माँ के जरिए से होते हैं, उन रिश्तों की बुनियाद पे इसे तरके में हिस्सा भी मिलेगा और इसका हिस्सा भी उन्हीं लोगों के दरमियान तकसीम होगा। तो ये चंद बुनियादी मसाइल थे जो विरासत के बाब में अहले इल्म ने जिक्र किए हैं, जिनका जानना हम तमाम के लिए जरूरी था। तो बहरहाल मफकूद के मीरास या वारिस अगर मफकूद होता, गुम हो जाता है, तो उसकी भी तफसील, या इसी तरह से हमल जो ठहरता है, बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है, बाप का इंतकाल हुआ, तो ऐसी सूरत में शरीयत उस बच्चे को भी महरूम नहीं रखती, उसका भी हिस्सा बयान करती है। या इसी तरह से मुश्किल मसला है खुंसा का, जो मुखन्नस होते हैं, जो हिजड़े होते हैं, उनके ताल्लुक से भी शरीयत के अंदर रहनुमाई मौजूद है। इज्तिमाई जो मौत होती है, इज्तिमाई मौत के सिलसिले में शरीयत के अंदर बिलखुसूस निज़ाम विरासत का मामला क्या है, उसको भी आपके सामने वाज़ेह किया गया। और इसी तरह से वलदुल लिआन और वलदुल ज़िना के मसाइल भी आपके सामने बयान किए गए। आप इस एतबार से देखेंगे तो शरीयत के अंदर कहीं पे भी विरासत के मामले में हक तलफी का आपको तस्वुर नहीं हो सकता है। ये एक पाकीज़ा और शफाफ निज़ाम है जो मजहब इस्लाम ने दिया है हमें, और दुनिया उसी के वक्त अमन के अंदर, आफियत के अंदर रह सकती है जब इस्लाम की तालीमात के ऊपर अमल करे। खास तौर से इस्लाम ने जो विरासत का पाकीज़ा निज़ाम दिया है, उस निज़ाम को अमल में लाने की कोशिश करे। इसलिए आप देखेंगे कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 3 तरह के मुजरिमों को अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा जहन्नम में रहने का तज़किरा किया है। एक आदमी जो सूदखोर होता है, जानते बूझते सूद खाता है, वमन आद फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून। और एक आदमी सूरह निसा के अंदर वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन
एक वो आदमी जो किसी मोमिन आदमी को नाहक कत्ल कर देता है, वो हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा। तीसरा, जो निज़ाम मीरास के अंदर तब्दीली करता है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए भी सूरह निसा आयत नंबर 14 के अंदर बयान किया। तो ये 3 तरह के मुजरिम हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने खुलूद फिन्नार का तज़किरा किया, यानी जहन्नम के अंदर हमेशा रहेंगे। एक सूदखोर, दूसरा मोमिन का नाहक कत्ल करने वाला, और तीसरा जो आदमी निज़ाम मीरास के अंदर तब्दीली पैदा करता है। और अल्लाह इब्न क़य्यिम अल-जौज़िय्या रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने जो खुलूद फिन्नार का तज़किरा किया, हमेशा जहन्नम के अंदर रहेंगे, उसकी 2 सूरत होती है। एक तो दायमी होती है, दायमी का मतलब ये है, खुलूद दायमी का मतलब ये है कि वो हमेशा हमेशा रहेंगे, कभी भी नहीं निकलेंगे। ये काफिर और मुशरिक के लिए है कि ये खुलूद दायमी है, जहन्नम के अंदर हमेशा रहेंगे। और दूसरा है मौक़त, खुलूद मौक़त। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन 3 तरह के मुजरिमों का जो तज़किरा किया है, वो खुलूद मौक़त के कबील से, यानी लंबे पीरियड तक ये लोग जहन्नम के अंदर रहेंगे और वहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इस जुर्म की सजा देगा। तो खुलासे कलाम ये है कि मीरास का निज़ाम एक पाकीज़ा निज़ाम है। शरीयत ने बड़ी तफसील के साथ इस हवाले से गुफ्तगू फरमाई है, बल्कि सबसे ज्यादा मुफस्सल अंदाज से शरीयत ने मीरास के निज़ाम को बयान किया। मजलूमों को और कमजोरों के हुकूक को बयान अल्लाह तबारक व तआला ने हक दिलाने के लिए निज़ाम मीरास को बयान किया। और आप गौर करेंगे अल्लाह ताला ने जिस सूरत के अंदर मीरास के कानून को बयान किया है, वो सूरत निसा है। 2 मजलूमों का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया खास तौर से, एक यतीम और एक औरत, क्योंकि उस जमाने में इन्हीं दोनों के ऊपर मजालिम होते थे। यतीमों का माल ले लिया जाता था, औरतों को उनके हुकूक से बेदखल किया जाता था, खास तौर से मालियाती सिलसिले में। तो इसलिए मजहब इस्लाम ने इन दोनों चीज़ों को बड़ी तफसील के साथ बयान किया है, खास तौर से सूरह निसा के अंदर। इसलिए हम तमाम की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि इस इल्म की नशो इशाअत करें और इस इल्म को फ़रोग़ देने की कोशिश करें और लोगों का रुझान बनाए, लोगों को आमादा करने की कोशिश करें कि मीरास का शरीयत इस्लामिया ने जो पाकीज़ा निज़ाम दिया है, उस निज़ाम के ऊपर हम अमल करने की कोशिश करें। जो माशरे के अंदर खराबियाँ हैं, उन्हीं खराबियों में से बहुत सारी खराबियाँ ऐसी भी हैं कि जिनका हम दिफा कर सकते हैं, जिनको हम हटा सकते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे माशरे के अंदर मीरास के निज़ाम को लोग इस बुनियाद पे अमल में नहीं लाते हैं, इस बुनियाद पे अमल में नहीं लाते, गलतफहमी होती है कि बाप का जो मुश्तरका माल है वो बढ़ जाएगा, कई हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। याद रखें, मजहब इस्लाम इसी बात का कायल है, इसलिए इस्लाम की तालीमात को अपनी राय और अपनी सोच के ऊपर फौकियत देना चाहिए। बहुत सारे मकामात पे ऐसा भी नजरिया देखा जाता है कि लोग सोचते हैं कि खास तौर से औरतों के मामले में कि अगर हम बेटी को हिस्सा देंगे तो वो माल लेकर के अपने ससुराल चली जाएगी, दूसरे के घर चली जाएगी। लेकिन आदमी ये नहीं सोचता है कि अगर मीरास का निज़ाम लागू हुआ तो हमारी बेटी अपना तरका लेकर अपने ससुराल जाती है, हम जिसके शौहर हैं वो भी किसी की बेटी है, वो अपने मैके से तरका लेकर के हमारे घर आएगी। या इसी तरह से आप देखेंगे समाज और माशरे के अंदर मीरास के मसले को इस हैसियत से कमजोर समझा जाता है कि एक आम जहन बन चुका है। लोगों ने दीन इस्लाम को नमाज, रोजा, ज़कात ही में महसूर कर लिया है। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, उसको बताया जाता है कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, दिन के पाबंद नहीं हो। रोजा नहीं रखता है, उसको तंबीह की जाती है कि तुम रोजा नहीं रखते। लेकिन समाज और माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि एक आदमी औरतों का हिस्सा मारे हुए है, भाइयों का हिस्सा गबन किए हुए है और आराम से उसको दबाए बैठा है। कोई उसको तंबीह करने वाला नहीं होता है कि भाई आप दूसरों के हिस्से को गबन करके बैठे हैं, ये शरीयत के अंदर कबीह तरीन जुर्म है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हमेशा जहन्नम में रखने का वादा किया है। तो बहरहाल माशरे और समाज के अंदर ये जो बिगड़े हुए तसव्वुरात हैं, जो ख्यालात हैं, उन ख्यालात को हमें दूर भी करना होगा। इस्लाम का जो निज़ाम मीरास है, पाकीज़ा निज़ाम है, उसको लागू करने के लिए कोशिश भी करना होगा। दोनों महाज पे अगर कोशिश की गई तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़हब इस्लाम ने जो शऊर दिया है, उस शऊर को हम आम करके, उस निज़ाम को आम करके अपने समाज और माशरे के अंदर अमन व अमान का क़याम हम कर सकते हैं, अमन व अमान को लागू कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आखिर में दुआ करते हैं कि मौला करीम मज़हब इस्लाम ने जिस तरह से पाकीज़ा निज़ाम दिया है मीरास के हवाले से, उसी तरह से तमाम दुनिया के मुसलमानों को इस निज़ाम के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जहाँ कहीं भी
اس کے اندر خرد برد کیا جاتا ہے یا اس کی اہمیت کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو صحیح شعور عطا فرمائے اور اس نظام کو لاگو کرنے اور اس نظام کو اسلام نے جس طرح سے لاگو کیا ہے اسی طرح سے نافذ کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں ہم نے سنی ہیں کتاب و سنت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ جو بھی ہم واضح و نصیحت کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں سنتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے یہ محفلیں رچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر بھرپور انہیں بدلہ عطا فرمائے۔ جو ہمارے احباب پروگراموں کا حصہ بن رہے اپنے قیمتی وقت کو اس سلسلے سے جوڑ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی مزید توفیق عطا فرمائے اور ان کی شرکت کو اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا کے اندر ان کے مسائل کو دور فرمائے اور اخروی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ ایک بار پھر میں آپ تمام احباب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ مجھے اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں اپنی باتوں کو پیش کرنے کا موقع دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے اور جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں دین کے سیکھنے اور سکھانے سے متعلق ہم تمام کی کوشش چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے اور اسے قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نجات کا دخول جنت کا اللہ رب العالمین اسے ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین اللہم آمین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بک الاسلام والمسلمین۔ یہ تھے فضیلت الشیخ ممتاز احمد سلفی حفظہ اللہ، آپ کے سامنے اسلام میں وراثت کا نظام، اس کا پارٹ نمبر 4 پر شیخ محترم نے علمی طور پہ جو ہے گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے۔ شیخ اگر کیا تو سوالات لیں گے شیخ، 2-3 سوال ہیں لے سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیک شیخ۔ اگر ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، اگر کوئی اہم سوال ہے پوچھنا چاہتے ہیں ٹاپک سے ہٹ کر بھی تو ہینڈ ریز کریے، انشاءاللہ شیخ محترم اس کا جواب دیں گے۔ ظہیر خان بھی اپنے پاس سے انموٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا تھوڑا لیٹ ہو گیا کیونکہ میں بہت لیٹ ابھی آیا کام سے، پتہ نہیں چلا، لیکن شیخ میرا سوال کچھ نہیں، بس یہی ہے شیخ میرے لیے دعا کرنا۔ میرا جمعے کے دن شنیوار کو میرا ٹکٹ، میں جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے یہاں سے، اور پھر انشاءاللہ پھر کبھی ویزا جب ملے گا تو آئیں گے۔ بس دعا کرنا شیخ، آسان ہو جائے، اللہ راستہ آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان کرے اور سفر میں ہم لوگوں کے لیے بھی اور یہ ٹیم جو کام کر رہی ہے آپ اس کے لیے بھی دعا کیجیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو آسان فرمائے، دنیاوی مشکلات کو دور فرمائے، اور جہاں بھی رہیں آپ اس تنظیم سے موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے جڑے رہیں، کیونکہ دین سیکھنے اور سکھانے کا یہ مشترکہ طور پہ جو کام ہو رہا ہے آپ اس کا ایک حصہ بنے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل فرمائے، اور جو دنیا میں مشکلات اللہ تعالیٰ دین پہ عمل کرنے کی بنیاد پہ، دین سے جڑنے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو دور فرمائے۔ ہم بھی دعا کر رہے ہیں، ہم تمام مشارکین سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے حق میں سب دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جملہ مسائل کو آسان فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک شیخ۔ آمین اللہم آمین۔ شاید کوئی سوال نہیں شیخ، اسی پر اتفاق کریں گے انشاءاللہ۔ بھائیاں کوئی ہینڈ ریز نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، آج کے مجلس کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد ہم فضیلت الشیخ ممتاز احمد سلفی حفظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شیخ محترم نے اپنا قیمتی وقت ہم نوجوانوں کے لیے اور امت کے لیے، رہنمائی کے لیے وقت نکالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے اس وقت کو ذخیرہ آخرت کے ذریعہ بنائے۔ آخر میں زوم پر جو تشریف لائے ہیں ان کا اور یوٹیوب پر جو لائیو دیکھ رہے ہیں ان سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے علماء حق سے جوڑے رکھے اور ان سے علم حاصل کرتے ہوئے، سیکھے ہوئے علم پر عمل کرتے ہوئے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے راستے پر گامزن رہنے کے اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین یا رب۔ آخر میں آپ سب کو معلوم ہے AIGEC کی طرف سے کئی ایک ہفتے میں اردو دروس چل رہے ہیں اور تیلگو زبان میں 2 دروس چل رہے ہیں مہینے میں۔ تمام دروس کے اپڈیٹس اعلانات کے ذریعے اب تک پہنچا رہے ہیں، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے AIGEC ٹیم کے نام پر، اس کو سبسکرائب کریں۔ یہ جو بھی عنوانات یہ دروس مختلف علماء کے ہو رہے ہیں وہاں پہ اپلوڈ ہو کے رہتے ہیں، آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں، دوسروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ دعائی کلمات کے ساتھ مجلس ختم کریں گے۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وأتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آخر میں سب حضرات کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.